Hello students, welcome to Dr. Dushyant's physics classes. Myself Dr. Dushyant, and now in this lecture today we will discuss motion in one dimension, and we will introduce certain physical quantities. Some of them we have already studied in our previous topics, and few of them we are going to introduce new one. So let's start with the motion. So prior to starting the clear concept of motion, let's have some introduction to two main terms of this chapter, that is rest and motion. Actually, these are the two different states, or you can even say the physical states of a body. They are the physical states of a body. Now, first question is, what is rest and what is motion? Whenever we are going to define the rest and motion, we say what? Whenever the body is not changing its position, we can say that body is said to be at rest. And if body is changing its position continuously, we say the body is executing motion. But both of these definitions, they are incomplete. ये दोनों incomplete definitions हैं. Whenever you are defining these two terms, first of all, you should be aware that you need either a surrounding or certain fixed point as a reference. या तो आपको सराउंडिंग चाहिए या कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू विच आप डिफाइन करेंगे. किसको डिफाइन करेंगे? चेंज इन पोजीशन और चेंज इन सराउंडिंग. समझ आई बात आपको? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको कि मान लीजिए यू आर सिटिंग इन सम बस और सम अदर व्हीकल, you are sitting inside it. So in this bus you are having 2-3 bodies over here. Now one thing, you are having two surroundings. As point A, you are having two surroundings. One of the surrounding, that is your bus. Another, the surrounding that is actually surrounding the bus. दूसरी surrounding क्या है? जो actually bus को surround कर रही है. चलिए अब हम define करते हैं rest with respect to both the cases. One, the surrounding as a bus. Second, the actual surrounding in which there are certain number of trees over there. So हम मान के चलते हैं कि यहां पे हमारे पास क्या है? कुछ trees हैं. तो उन trees के reference में हमें मान के चलते हैं. चलिए number one, if you are sitting in a bus and bus is not moving, आप भी बस में बैठे हो और बस भी रेस्ट में है, तो अगर आपको मैं दोनों जगह ले लूं, आप कहूंगा मैं आपको कि आप अपनी सराउंडिंग अगर बस का मान के चलते हो तब भी आप रेस्ट में हो. अगर आप अपनी सराउंडिंग के जो छोटे छोटे ट्रीज प्लांट्स हैं उनको लेके चलते हो तब भी आप रेस्ट में हो. डन. दोनों केसेस में क्लियर हो गए कि अगर बस को सराउंडिंग लेके चलते हो तब भी आप अपनी सीट पे बैठे हुए हो, और अगर ट्रीज को अपनी सराउंडिंग लेके चलते हो तब भी आप अपनी जगह पे बैठे हुए हो. बट इफ द बस स्टार्ट्स moving in some direction. Now what is happening? One case, you are sitting inside that bus. Now with respect to the passengers in the bus, you are at rest. क्योंकि आप बस को सराउंडिंग लेके चल रहे हो और अपनी सीट के हिसाब से आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप विद रिस्पेक्ट टू बस you are at rest. But if you consider tree as the surrounding, now along with the bus you are also moving. So with respect to trees, your position is changing. So with respect to those trees, you are in motion. तो बात समझ आई
कि सबसे पहले रेस्ट को डिफाइन करने से भी पहले आप किस चीज को डिफाइन करोगे? आप डिफाइन करोगे उसकी सराउंडिंग को, उसकी सराउंडिंग को। डन। चलिए अब डिफाइन करते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है भाई। क्या है रेस्ट और मोशन? तो सबसे पहले रेस्ट क्या है? इट इज द स्टेट in which a body do not changes its position with reference to a point or surrounding, with respect to a point or surrounding, या पॉइंट या सराउंडिंग के हिसाब से आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, then you are going to have rest. But motion is that state in which body is changing regularly with respect to changing what? Its position with respect to a fixed point or what? और its surrounding. तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए रेस्ट और मोशन आपकी बात आ गई। अब कंडीशन ये है, क्या रेस्ट और मोशन जो है क्या ये आइडियल केसेस हो सकते हैं? आइडियल केसेस मींस वेदर रेस्ट एंड मोशन कैन बी ऑब्सोल्यूट। क्या एग्जैक्टली कोई बॉडी रेस्ट में हो सकती है? हो सकती है। क्या ऐसा केस कोई है? क्या एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई केस पॉसिबल है? भाई बिल्कुल भी नहीं। कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में हो ही नहीं सकती। तो एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ कैसे कंसेप्ट हैं? थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल देके बताता हूं रेस्ट की, क्या बॉडी रेस्ट में हो सकती है। चलिए मान लीजिए अब ट्री, हमारी सराउंडिंग में सबसे ज्यादा स्टेशनरी स्टैग्नेंट चीजें क्या हैं? सबसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, ट्रीज। अब आप मूव कर रहे हो, देयर इज अ ट्री ओवर हियर, डन, you are play here at some point, done. Now अगर आप अपनी रेस्ट को, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री मान के चल रहे हो, आप कहते हो भाई आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री बिकॉज आई एम कंसीडरिंग दैट ट्री एज स्टेगनेंट आर एट रेस्ट। बट वेदर दैट ट्री इज एट रेस्ट, फॉर मी ट्री इज एट रेस्ट, बट tree is planted on what? On earth, and earth is regularly moving, so tree is also moving along with earth. तो आपका ट्री भी स्टेगनेंट नहीं है। चलिए मैं ट्री नहीं लेता, मेरी अर्थ मूव कर रही है, मैं किसको ले लेता हूं? मैं सन को अपना रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं। भाई मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन है? रेफरेंस पॉइंट है भाई मेरा सन। तो मैं मानता हूं भाई सन मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो मैं उसके हेल्प से अपनी पोजीशन देता हूं। बट सन इज ऑल्सो नॉट एट रेस्ट, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट्स ऑलवेज इन रेगुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू द गैलेक्सी, विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स इन द गैलेक्सी। तो एक्चुअली कोई भी स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, नाइदर मोशन नॉर योर रेस्ट। तो बात समझ आई? तो एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट जो है वो दोनों भी कौन से केसेस हैं? थ्योरेटिकल केसेस हैं। डन। चलिए अब दो रेगुलर थिंग्स, दो रेगुलर कंसेप्ट्स लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के। टाइप्स ऑफ मोशन के मैं उसमें पहले आपको सिर्फ दो टाइप्स के मोशन ही समझाऊंगा। तो पहला टाइप ऑफ मोशन जो मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं वो है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी। और दूसरा जिसे मैं कंसीडर कर रहा हूं दैट इज सर्कुलर मोशन, अ सर्कुलेटरी मोशन। डन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस और एग्जीक्यूट्स मोशन along a straight line, along a straight line। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट और एग्जीक्यूट करता है मोशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन और ट्रांसलेटरी मोशन पे है। मींस वो पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। सो बॉडी इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन along a
फिक्स्ड पॉइंट, पॉइंट कौन है यहां पे, ओ, इस ओ से रेगुलरली या तो टूवर्ड्स दिस जा रहा है या अवे फ्रॉम दिस जा रहा है। सो मींस इससे आपका डिस्टेंस जो है आइदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग। तो आपके पास पहला केस क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन है कि पार्टिकल इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी इफ इट मूव्स a straight line so that its distance from a fixed point, here we have considered that fixed point as O, it either increases or decreases, either increases or decreases, and this point you can even consider as a reference point, that is a reference point। और दूसरा कौन सा है, दूसरा केस है आपका कौन सा, that is circulatory or circular motion। कौन सा मोशन है भाई, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन की बात हम करते हैं तो सर्कुलर मोशन में आपका ऑब्जेक्ट जो है, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेगुलरली एक सेंट्रल पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है। मान लीजिए ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट से ये क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। तो in this type of motion, the object executes or changes its position, but at a fixed distance। इसका distance हमेशा क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। So you cannot say कि रेगुलरली उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, उसकी सिर्फ क्या रेगुलर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, पोजीशन तो हमेशा कांस्टेंट ही रह रही है। और वो डिस्टेंस मान लीजिए ओ ए, उसका डिस्टेंस है इस पाथ का, तो पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर। वो जिस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है उसे हम कहेंगे सेंटर, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पोजीशन दैट इज कॉल्ड रेडियस, दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो आपके पास जो आपका सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या आ गई, दैट इज possible that a particle may be in motion but its distance from a fixed point remains constant। तो क्या है सर्कुलर मोशन, ऐसा मोशन जिसमें आपकी बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहती है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहती है, कांस्टेंट डिस्टेंस, और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को कहते क्या है, रेडियस। और जो पाथ वो ट्रेवल करती है उस पाथ को हम कहते हैं सर्कुलर पाथ या सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। तो ये आपके दो किस्म के हो गए, क्या मोशंस हो गए, दो टाइप के मोशंस हो गए भाई, दो टाइप के मोशन। पहला ट्रांसलेटरी, अगर बॉडी किसके अलोंग चल रही है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और दूसरा आपका सर्कुलेटरी, अगर या सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी आपके किसके खिलाफ चल रही है, आपकी बॉडी चल रही है भाई along a circular path। चलिए ये तो आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है आपका कि जो आप स्टडी कर रहे हो, जो आप स्टडी कर रहे हो भाई, उस स्टडी में दो टर्म्स और आने जा रही हैं आपके पास। फर्स्ट वन इज काइनेमैटिक्स, दूसरी है भाई डायनामिक्स। एक टर्म आ गई काइनेमैटिक्स, दूसरी आ गई डायनामिक्स। तो पहली बात करते हैं काइनेमैटिक्स की। तो भाई काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स एक्चुअली दोनों ब्रांचेस हैं किसकी, फिजिक्स की, जिसमें डील करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बॉडी विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ पोजीशन। इसमें कॉज ऑफ मोशन को हम चेक नहीं करते हैं, वी आर नॉट वरीड अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। किसमें, काइनेमैटिक्स में। बट डायनामिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन को भी स्टडी करते हैं और उसके कॉज को भी स्टडी करते हैं। मोशन को भी स्टडी किया और किसको स्टडी किया, कॉज को भी स्टडी किया। तो काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which the cause of motion is not taken care of, and in dynamics the branch of physics in which the body
its motion and the cause of motion all are taken care of. ये बात समझ आ गई आपको? चलिए अब हम नेक्स्ट जो आपको स्टडी करेंगे दैट विल बी द स्टडी ऑफ कंप्लीट मोशन, इट्स टर्म्स सच एज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. तो स्टडी ऑफ मोशन करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए. नंबर 1, स्टडी करने के लिए हमसे पहले क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट. तो हमें चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? जब भी कोई बॉडी मूव करती है और उसकी मेजरमेंट्स करने के लिए, लेंथ्स मेजर करने के लिए एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए. भाई वो किस डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है. सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द स्पेशियल पैरामीटर. स्पेशियल मींस along the space. स्पेशियल, SPATIAL, स्पेशियल पैरामीटर्स. कौन देता है हमें? कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम का सबसे अच्छा जो हमारा है दैट इज प्लेनर सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. कैसे हम लेते हैं? ये है XY प्लेन्स. यहां हम चेक करते हैं, ये आता है ओरिजिन. अब अगर बॉडी आपकी कहीं पे है तो उस बॉडी की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू O? दिस बॉडी इज X. ये X पॉइंट पे, या इसे मान लीजिए P पॉइंट है आपका. P पॉइंट पे देखेंगे कि अगर ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, तो इस X एक्सिस और Y एक्सिस से ये P पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है. डन. तो X और Y इसके हो गए कोऑर्डिनेट्स और ये कंप्लीट सिस्टम बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या बन गया? कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये बात समझ आ गई. अब दूसरा हमें चाहिए टाइम. क्या चाहिए? टाइम. मेजरमेंट ऑफ टाइम चाहिए भाई. टाइम के लिए हमें क्या चाहिए? कोई स्टॉप वॉच चाहिए. क्या चाहिए? स्टॉप वॉच. क्यों स्टॉप वॉच चाहिए भाई? क्योंकि स्टॉप वॉच मुझे इनिशियल वैल्यू भी देगी टाइम की और फाइनल वैल्यू भी देगी. और कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द वॉच आर टाइम मेजरिंग डिवाइस दैट इज नोन एज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या देगा मुझे देगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जिसमें मुझे पोजीशन मिल रही है और मुझे क्या मिल रहा है? टाइम मिल रहा है. तो दोनों चीजें यहां मिल जाती हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and enjoy the physics with me. Thank you. Have a wonderful time ahead. Enjoy physics. Goodbye. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.